Okay, so today we're going to see the shapes of complexes. Actually, we have gone through it previously, but we'll just quickly revise it. Shapes of complexes depend on the number of ligands attached. As far as the number of ligands attached, four types of shapes हमने पढ़ी थी last class में. एक हमने कहा था कि shape of the complex होती है linear. अगर there are two ligands attached, two monodentate ligands होंगे अगर, जैसे AgNH3. So silver metal has two monodentate ligands attached with it. This complex will be linear. जब भी दो monodentate ligands होंगे, तो complex would be linear. You know, it's just like a Vesper theory. So it will have a shape like this. And the bond angle is what? 180 degree. So linear is the shape and the bond angle is 180 degree. For all those complexes, जिनमें के दो monodentate ligands होंगे. अब या तो हो सकते हैं मोनोडेंटेट, जो मोनोडेंटेट है वो इवन नंबर होता है, तो या हो सकते हैं 4 मोनोडेंटेट लिगेंड्स. अगर 4 मोनोडेंटेट लिगेंड्स होंगी तो दो तरह की शेप्स हो सकती हैं. कौन सी दो तरह की शेप्स हो सकती हैं? आइदर इट विल बी अ टेट्राहेड्रल और इट विल बी अ स्क्वायर प्लेनर. So whenever there are 4 types of monodentate ligands attached, for example, look at CuCl4. Or for example, PtNH3 twice Cl2. So if you look at these 4 ligands attached, so if there are 4 ligands attached, so it will be tetrahedral like this. Cu tetrahedral is tarah hoga. Ye Cl, 1 Cl, and then 1 Cl. So this is like this. CuCl4. Okay. Now the next is Pt. Here it is. NH3, ये Cl और ये Cl. Look at this. This is what? Square planar. Okay. So bond angle is what? यहाँ पे होगा 109.5 और यहाँ पे कितना होगा? 90. Okay. So if there are 4 ligands attached, so it will be like this. इसी तरह अगर 6 ligands attached होंगे, 6 monodentate ligands in a complex, जैसे CuH2O6 है, तो आप कहते हैं this complex is going to be octahedral in shape with a bond angle of what? 90 degree. Okay, octahedral like this. ये Cu है, 2 positive, इसके साथ will be like this. Right? For example, look, this is H2O on this side, H2O on this side, H2O, H2O. So ये just like square planar है यहाँ तक, और दो ऊपर और नीचे हैं. ये H2O है और ये H2O है. Yeah. So this is CuH2O, 6 octahedral with a bond angle of what? 90 degree. Okay. So these are the 4 types of shapes of complexes. आज हम जो डिस्कस करने चाह रहे हैं, तो मैंने क्विकली रिवाइज किया कि क्या है. राइट. अब मोनोडेंटेट लिगेंड होगा, बाइडेंटेट होगा, तो जाहिर है अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि अच्छा ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, what will be the shape of this? आप कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड है, 3 लिगेंड्स इसके साथ अटैच्ड हैं, तो फिर ओवरऑल तो क्या पोजीशन हो जाएगी? आप कह रहे हैं ये तो ओवरऑल 6 बॉन्ड्स हो जाएंगे, तो फिर इसका मतलब है इसकी शेप क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल. एक मोनो बाइडेंटेट है ना, ये बाइडेंटेट लिगेंड मैंने बताया था एक हेडफोन की तरह मेटल को पकड़ता है, दो जगह से पकड़ता है. तो दिस इज आयरन, सो इट गोज लाइक दिस. दिस इज Fe,
this one, this one. Okay, so this is C2O4. C2O4 is like this. If I draw this ligand, it is like this. Look, this is a monodentate ligand, a bidentate ligand, C2O4. Okay, so now you see it has two attachments here. It has to clip the metals from 2 points. So एक oxygen इधर आ जाएगा, एक oxygen इधर आ जाएगा. So it's going to be like this. This one. Similarly, it's going to be like this. Okay, and similarly, it is going to be like this. Yeah. Okay. This is the octahedral complex है ये. Okay. So overall इसका क्योंकि 3 positive charge होता है, 1 negative, 1 negative, 1 negative, 1 negative, 1 negative, 1 negative, 6 negative है, 3 negative charge आ जाएगा. तो shape क्या होगी? Octahedral. So अगर 3 bidentate ligand attach होंगे तो 6 attachments होंगी. So it's going to be an octahedral complex. Right? Okay, next. वो 2 याद करने होंगे. मैंने आपको 2 bidentate ligand बताए हुए हैं. 2 bidentate ligands आपको याद करने होंगे, अदरवाइज वो आपको बता देगा. एक bidentate ligand आपको जो याद करने हैं वो 2 हैं. एक तो ये मैंने बता दिया, ethane dioate is a bidentate ligand. और दूसरा जो bidentate ligand है वो ये है, NH2. This is another bidentate ligand. CH2, CH2. CH2. ये तो ये भी एक bidentate ligand है. So ये भी एक bidentate ligand है. ये देख रहे हो, ये इसको EN बोलते हैं शॉर्ट करके, इसको ईथेन डायोएट बोलते हैं. तो ये 2 आपको bidentate ligand आने चाहिए. वो 1,2 डायमाइनो ईथेन है, ये ईथेन 1,2 डायमाइन. ओके, सो अब आ जाते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म. ये तो होगी शेप्स. अब है हमारे पास व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको याद है, ऑर्गेनिक में भी हमने पढ़ा था कि जो 2 कॉम्प्लेक्सेस जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो, किस चीज का फर्क हो? ओरिएंटेशन का फर्क. तो हम कहते हैं जी वो तो ऑर्गेनिक में तो 2 तरह के स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता था. कौन सा? सिस, ट्रांस एंड ऑप्टिकल. हम कहते हैं यहाँ भी 2 ही टाइप्स हैं. राइट, तो लिखिए जरा, देयर आर 2 टाइप्स. एक होता है सिस ट्रांस और जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म. और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. यानी ये जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं ना, इनमें जब ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाती है तो एक को सिस ट्रांस और एक को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. पहले हम बात करते हैं नंबर 1, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. देखिए फॉर एग्जांपल, प्लीज पेरेंट्स, एक तो लीनियर में और टेट्राहेड्रल में, एज फॉर एज आवर सिलेबस इज कंसर्न्ड, इसमें तो आप समझिए कोई आइसोमेरिज्म नहीं होगी. ठीक है, अगर कोई लीनियर कॉम्प्लेक्स होगा या टेट्राहेड्रल होगा तो हम कह रहे हैं जी उसकी तो कोई आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म उसमें नहीं होगा. ठीक है, तो किन में होगा? स्क्वायर, प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के जब आप उनको ड्रॉ करेंगे तो अगर उनकी अरेंजमेंट चेंज हो गई, ओरिएंटेशन इन स्पेस चेंज हो गई, तो वो एक डिफरेंट आइसोमर बन जाएगा विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, विद डिफरेंट केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज. राइट, तो आप कहते हैं जी वो कैसे? अब जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं तो आप कहते हैं जी जैसे नंबर 1, अगर आप एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लें,
तो वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड कि उसका जो कंडीशन है वो ये है कि ओनली M A2B2 टाइप कॉम्प्लेक्सेस with square planar shape show the cis trans isomerism। क्या मतलब है इसका, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। Ma2B2 का क्या मतलब है कि एक मेटल के साथ दो तरह के लिगेंड्स होने चाहिए। ए मतलब एक टाइप ऑफ लिगेंड और बी मतलब अनदर टाइप ऑफ लिगेंड, और दोनों का आपस में रेशो क्या होनी चाहिए, यानी नंबर क्या होना चाहिए, नॉट रेशो, 2:2। जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल पीटी प्लैटिनम मेटल है, उसके साथ एक लिगेंड है अमोनिया, उसके दो हैं, और एक Cl है, उसके भी दो हैं। तो आप कहते हैं यस दिस इज नोन एज प्लैटिन। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, प्लैटिन। आप कहते हैं यस प्लैटिन कैन शो द सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसमें एक मेटल के साथ दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हैं और दोनों की अमाउंट यानी नंबर 2:2 है। तो आप कहते हैं यस इट कैन हैव सिस। सिस कैसे होगा, जब दो सिमिलर एटम्स, याद है सिमिलर एटम सेम साइड पे हो तो हम उसे क्या बुलाते थे, सिस। ऑपोजिट साइड पे हो तो हम उसे क्या बुलाते थे, ट्रांस। तो आप कहते हैं जी जैसे ये दोनों Cl एक तरफ लगा दें और दोनों NH3 साथ साथ लगा दें, तो ये प्लेटिन का कौन सा आइसोमर बन गया है, इसे कहेंगे सिस प्लेटिन। स्क्वायर प्लेनर तो है ना, ये मुझे पता था। इसी का ट्रांस बनाना है, कैसे बनेगा। आप कहते हैं जी इसी का ट्रांस आइसोमर भी बन सकता है। कैसे, देखो फॉर एग्जांपल अगर एक Cl इधर है और दूसरा Cl इधर है, एक NH3 इधर है और एक NH3 इधर है, तो क्या होगा देखें। ये देखें वही है ना, प्लेटिन ही है, लेकिन क्या पोजीशन है, क्या दोनों Cl अपोजिट साइड पे हैं। तो ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा, इसे बोलेंगे ट्रांसप्लेट। और इसका आपको पता है बहुत फर्क होता है। अब जैसे सिस प्लेटिन जो है कैन बी यूज्ड एज एंटी कैंसर ड्रग। ये जो कीमो में ड्रग यूज होती है ना, आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रांसप्लेटिन है कैन नॉट बी यूज्ड, यानी इवन जस्ट सिस से ट्रांस हुआ है वो यूज नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों जब एक साइड पे होते हैं ना तो ये डीएनए को रेप्लिकेट करने से रोक लेते हैं, लेकिन जब ऑपोजिट साइड पे होते हैं तो नहीं रोकते। बट वो हमें नहीं जानना कि ये क्या करते हैं, ये बायो वाले समझते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन को रोकता है इधर। ठीक है, सिस रोक सकता है, कैन स्टॉप एंड कैन एक्ट एज एन एंटी कैंसर ड्रग, एज इट कैन स्टॉप डीएनए रेप्लिकेशन, बट ट्रांसप्लेटिन कैन नॉट। ठीक है, बट ट्रांसप्लेटिन कैन नॉट, cannot be used as anti-cancer drug। ट्रांसप्लेटिन को आप नहीं यूज कर सकते एज एंटी कैंसर ड्रग, सिसप्लेटिन को आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। अब आ जाए दूसरी टाइप। वो कहता है अच्छा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस सारे नहीं करते, सिर्फ इस तरह का कॉम्प्लेक्स जिसमें दो डिफरेंट लिगेंड्स होंगे, दो दो नंबर होगा, उसका सिस और ट्रांस आइसोमर बन जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस सारे ही सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ऐसा नहीं है। अगेन कंडीशन है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिनमें ये वाली पोजीशन है Ma4B2 या फिर और MAAB2 टाइप। मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या मतलब है। कॉम्प्लेक्सेस कैन एग्जिबिट सिस ट्रांस। मतलब क्या है, Ma4B2 का मतलब है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें Cu
NH3 4 H2O ट्वाइस है। तो आप कहते हैं हाँ टोटल नंबर 6 है, यस। 4 एक लिगेंड है, 2 एक लिगेंड है, यस इट कैन हैव द फिनोमेना ऑफ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, यानी इसके दो आइसोमर बनेंगे, एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। इसी तरह अगर ये है, वो कहता है फॉर एग्जांपल इसको देख लीजिए, फॉर एग्जांपल दिस इज क्रोमियम, लेट्स से C2O4, ओके, 2 और H2O2, सॉरी ये A ट्वाइस है, कह रहे ये कॉम्प्लेक्स है। ये आप कहते हैं इसमें भी, मैं मिसाल देता हूं पहले इसकी। आप कहते हैं जी ये टोटल क्योंकि 6 हैं, दो ये और सॉरी 4 ये, तो टोटल 6 हैं, तो क्या शेप होगी ऑक्टाहेड्रल। अब इसके दो आइसोमर बनेंगे, एक ये, इधर देखो, शेप तो दोनों की ऑक्टाहेड्रल ही होगी ना, इसकी भी और इसकी भी। फर्क क्या होगा, इधर देखो, वोटर को लेना है, जो कम नंबर वाला लिगेंड है ना उसको देखना है। अगर दोनों वोटर साथ साथ लगे हों, दो ऐसी पोजीशन जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ है, तो ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा, सिस। ये कौन सा आइसोमर है, सिस। अब जैसे एक NH3 इधर आ गया, एक NH3 इधर आ गया, एक NH3 इधर आ गया और एक NH3 इधर आ गया, तो ये कौन सा आइसोमर हो गया, सिस। और इसी तरह अगर आप इस तरह देख लें कि एक फॉर एग्जांपल H2O इधर है और एक उसके अपोजिट साइड पे है, तो ये कौन सा आइसोमर हो गया, ट्रांस। ये बताया, यही मतलब है कि अगर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें 6 टोटल लिगेंड हो, 4 एक तरह के हो, 2 एक तरह के हो, दैट वाज द पॉइंट। ओके, ये देखें आप, अब ये दो मैंने बनाए हैं, इसमें ये दोनों वोटर क्या है, ऑपोजिट साइड पे हैं, तो ये ट्रांस आइसोमर होगा। दोनों वोटर क्या है, सेम साइड पे हैं, तो ये क्या है, सिस आइसोमर होगा। ये उसका सिस आइसोमर हो गया और ये उसका ट्रांस आइसोमर। समझ आएगी बात। यही है ना। अब इसी तरह आगे देखें, वो कहता है इसमें भी होगा, हम कहते हैं यस। ये देखो, इसमें भी अगर आप दो बाइडेंटेट लिगेंड है तो 4 और 2 6, टोटल 6 कनेक्शंस हो गए ना। तो इसलिए आप कहते हैं जी इसका भी दो होंगे, शेप तो वही होगी ऑक्टाहेड्रल। इधर देखो, दोनों की, इसकी भी ऑक्टाहेड्रल होगी, जो दूसरा बनेगा उसकी भी ऑक्टाहेड्रल होगी। ओके, अब देखें ये है Cr। अब जो C2O4 है, मैंने अभी पहले भी बताया था, वो ये चीज है, ये है ना, दो जगह से क्लिक करेगा। लेट से मैंने इसको शॉर्ट करके आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये C2O4 हो गया एक, ये C2O4 हो गया दूसरा। ओके, और इसके साथ इधर भी H2O, इधर भी H2O, क्या दो H2O साथ साथ हैं, तो ये कौन सा आइसोमर हो गया, सिस। इसी का अगर मैं दोनों वाटर को ऑपोजिट कर दूं, इधर देखो, एक H2O इधर कर दूं और दूसरा H2O इधर कर दूं, तो ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा, ट्रांस, जिसमें के एक इधर है और एक इधर है। ये सिस है और ये कौन सा है, ये ट्रांस। एक सिस आइसोमर हो गया और एक क्या हो गया, ट्रांस आइसोमर। गॉट इट। एक सिस है और एक ट्रांस है, सिस एंड ट्रांस। अब इसी तरह वो कह रहे हैं आ जाए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे, तो सिस ट्रांस तो क्लियर हो गया ना, कब कब होता है, स्क्वायर प्लेनर में होता है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होता है। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ना, वो जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, वो दे आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होता है, और साथ कंडीशन क्या है,
containing a bidentate ligand, यानी उसकी शेप क्या होनी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स की शेप, और उसमें कम से कम एक या एक से ज्यादा बाइडेंटेट लिगेंड्स होने चाहिए, फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। जब फोर पे जो होते हैं, जब एक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों होते हैं, तो उसमें उनका परसेंटेज वो मैं बताऊंगा आगे चल, आगे चल। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा कंटेनिंग ओनली बाइडेंटेट लिगेंड, जैसे मिसाल के तौर पे इधर देखें FeC2O4 थ्राइस, आप कहते हैं हाँ इसमें तो बाइडेंटेट लिगेंड है, 3 है, इसमें होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कहता है इसी तरह लेट से CuEn ट्वाइस और H2O ट्वाइस, तो आप कहते हैं हाँ इसमें भी होगा, ऑल दो इसमें मोनोडेंटेट लिगेंड भी है, लेकिन क्योंकि एक बाइडेंटेट लिगेंड भी है तो इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना होगा, राइट। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ कैसे करते हैं वो आपको याद है क्या थे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो आप कहेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे ये एक आयरन है, तो क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की शेप होगी, इधर देखें ये इसी तरह का, लेट से ये दूसरा है, ये ठीक है। अब आप कह रहे हैं जी फर्क ये है C2O4, अब सुनना जरा, अगर एक C2O4 यहाँ अटैच है, याद है ना ये मैंने अभी बताया ये किस तरह होगा, अगर आप चाहें तो इस तरह लिख भी सकते हैं, ये O, ये O, ओके। इसी तरह दूसरा C2O4 यहाँ अटैच है और तीसरा C2O4 यहाँ अटैच है, ओके, ये है, यही है C2O4, ये है 3 पॉजिटिव और ये है 3 नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये हो गया एक। इसी का अब जो मेरे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस अगर मैं इस साइड पे बनाऊं तो क्या होगा, आप कहते हैं तो इन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ये वाली चीज देखो उधर चली जाएगी, तो इन्वर्टेड इमेज बनानी है ना, तो आप कहते हैं ये जो मैंने एरो लगाया है ये इस तरफ आ जाएगा, मिसाल के तौर पे इधर देखो, ये यूं इन्वर्ट होके इधर चला जाएगा, यानी इसी चीज को मैं इधर बनाने लगा हूं, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O, यही बनेगा, और ये वाला इधर चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड O, ये फिर इसी तरह ये क्या हो जाएगा, वो लिगेंड ही यही है ना, C डबल बॉन्ड O, O इज द लिगेंड। सो ये देखो क्या ये इन्वर्टेड इमेज बन गई है या नहीं, ये देखें इन्वर्टेड इमेज बन गई है ना उसकी, C2O4 है ना, तो ये देखें इन्वर्टेड इमेज है या नहीं है, आप कहते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, इन्वर्टेड है, तो आप कहते हैं यस दिस इज इनएंशोमर और ऑप्टिकल आइसोमर्स, राइट, ये दोनों क्या है, इनएंशोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब जैसे इसका बनाते हैं, इसका देखें, आप कहते हैं जी इसमें भी होगा, ये देखिए कैसे बनेगा, आप कहते हैं जी इसमें भी CU दिस वन दिस और दिस, ओके। अब जो EN है वो ये चीज है NH2 CH2 CH2 NH2, इसको भी आप इस तरह लिख सकते हैं, इधर देखो दो जगह ये अटैच हो गया, एक ये और एक ये, और दो इसके साथ वाटर आ गए, एक ये एक ये। अब इसी का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाना है, तो बताओ किस तरह बनेगा, हाशिम आप मेरी हेल्प करो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाना है, यानी इसी को उल्टा करना है, ये है ना ऑक्टाहेड्रल, अब देखो
ये जो दोनों ई एन हैं वो कहाँ चले जाएंगे? ये वाला जो ई एन है ये इन्वर्ट होके किधर चला जाएगा? इस साइड पे। यानी इसको इधर बना दूं यूं, और ये जो ई एन है नीचे वाला, ये ये कहाँ चला जाएगा? एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड पे, इन दो पे। और वोटर जो है, ये जो दोनों वोटर हैं ये किधर चले जाएंगे? इस साइड पे, ये और ये। समझ आ गई बात? ये अब ये दोनों क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस और द ऑप्टिकल आइसोमर्स, राइट? अब इन ऑप्टिकल आइसोमर्स में आप कहते हैं जी इसमें तो सिस ट्रांस भी हो सकता है। हम कहते हैं यस, इनमें से एक इमेज का सिस ट्रांस भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अभी ये जो ऑप्टिकल आइसोमर बने हैं ये किसका है? ये सिस का है, क्योंकि दोनों वाटर साथ साथ लगे हुए, इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? सिस। अब इसी का अगर मैं ट्रांस बनाऊं नीचे, ऑल दो उसका ऑप्टिकल नहीं बनेगा लेकिन बना लेते हैं, सिस ट्रांस तो बनेगा ना। तो इसलिए वो आपसे पूछता है, तो आपने बताना है उसको तीन आइसोमर बनेंगे, चार नहीं। इधर देखो, अगर एक H2O इधर लगा दूं और एक H2O इधर लगा दूं, तो फिर En इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा। तो ये उसी का क्या बन गया? ये सिस था, ये उसी का कौन सा आइसोमर बन गया? ट्रांस आइसोमर बन गया। सो बेसिकली तीन आइसोमर बन गए इन टोटल, सिस, ट्रांस, और सिस का आगे क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर, राइट? इसको जब आप इन्वर्ट करेंगे तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा ट्रांस वाले, क्योंकि जो इन्वर्टेड इमेज होगी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। तो ये आपने गौर से देख लेना है कि सिस और ट्रांस जब आप बनाते हैं तो इन्वर्टेड इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए, राइट? सो इन ओवरऑल, अब मैं सारे को सम अप करता हूं। मैंने ये कहा कि अगर आप शेप वाइज देखें तो सिर्फ दो कॉम्प्लेक्सेस की शेप्स हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करती हैं। यानी अगर आप शेप वाइज देखें, मैं दो अलग अलग टेबल बनाता हूं। अगर आप शेप वाइज देखें तो आप कहते हैं एक शेप होती है लीनियर, एक होती है टेट्राहेड्रल, एक होती है स्क्वायर प्लेनर, और एक क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। चार ही शेप्स होती हैं कॉम्प्लेक्सेस की, लीनियर, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल, राइट? अब जो ये लीनियर है इसमें तो कोई आइसोमेरिज्म नहीं होगा, इसमें भी कोई नहीं होगा। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में सिर्फ कौन सा होता है? सिस ट्रांस। वो भी उसकी शर्त है, वो मैंने आपको बताई है, दो डिफरेंट लिगेंड होने चाहिए। लेकिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो तो दोनों आइसोमेरिज्म होते हैं, सिस ट्रांस भी एग्जिबिट करता है और ऑप्टिकल भी एग्जिबिट करता है। ऑल दो कंडीशन है, सिस ट्रांस के लिए भी कंडीशन है कि डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस होने चाहिए, डिफरेंट लिगेंड्स होने चाहिए, और ऑप्टिकल के लिए तो क्या जरूरी है? एटलीस्ट एक या दो बाइडेंटेड लिगेंड्स होने चाहिए। ये तो हो गया शेप वाइज। अब अगर आप आइसोमेरिज्म वाइज देखें, आप कहते हैं जी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, जी बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, जी जी। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स होती हैं, एक कौन सा है? सिस ट्रांस, और दूसरा कौन सा है? ऑप्टिकल। ठीक है। सिस ट्रांस किस किस में एग्जिस्ट करता है? दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस में, स्क्वायर प्लेनर में भी होता है और ऑक्टाहेड्रल में भी होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ किस में होता है? ऑक्टाहेड्रल। गॉट इट? सो दिस इज हाउ द शेप्स and this is how the stereoisomerism exists. Got it? So stereoisomerism जो है और shapes, ये है कि सारा का सारा। समझ आ गई बात? So जब भी आपको सवाल आएगा आपको पहले देखना होगा। मिसाल के तौर पे इधर देखिए, फॉर एग्जांपल, look at this.
Here it is. ये देखिए बच्चे, look at this. Complete three-dimensional diagram to show the isomerism of this. इस कॉम्प्लेक्स का आइसोमेरिज्म बताना है बच्चों. Can you tell me the isomerism in this complex? आपको इसकी शेप पहले देखनी होगी. नहीं, बाइडेंटेट लिगेंड तो है ही नहीं इसमें. ये उसने बताया दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड है, और 4 एक हैं और 2 एक हैं, तो टोटल 6 हो गए. तो शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल विद मोनोडेंटेट लिगेंड. इसका मतलब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा. ओके, अब वो कह रहे हैं CH3NH2 को L लिख लो और वाटर तो H2O है, तो सिस ट्रांस होना है तो पहले एक सिस आइसोमर बनाते हैं फॉर एग्जांपल, और फिर इसी का कौन सा आइसोमर बन जाएगा? ट्रांस. सिस में क्या करें, जो कम नंबर वाला है वो साथ साथ ले लेते हैं. वाटर है तो 2 वाटर मैंने साथ साथ बना दिए, तो ये कौन सा हो जाएगा? सिस. L L L, ये कौन सा हो गया? सिस. और इसी को अगर आप यूं कर देते हैं H2O और H2O, तो ये कौन सा आइसोमर बन जाएगा? ट्रांस. समझ आएगी बात? सो ये सिस आइसोमर हो गया इसका, और ये कौन सा हो गया? ट्रांस आइसोमर हो गया. We'll continue this in the next class. We'll have more discussion on this. Thank you.